और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शनिवार की सुबह को पश्चिम बर्धमान अधिगावंता की ओर से कमलपुर सर्फ फेरो एलायंस प्राइवेट लिमिटेड संलग्न सिद्धू कान्हू मूर्ति की स्थापना को लेकर एक बैनर लगाई गई थी, किंतु रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने बैनर को फाड़ दिया, जिसके कारण पूरे इलाके में उत्तेजना फैल गई। शनिवार की सुबह को पश्चिम बर्धमान आदिवासी गावंता की ओर से कमलपुर सर्फ फेरो एलोइज प्राइवेट लिमिटेड संलग्न एक बैनर लगाई गई थी सिद्धू कान्हू मूर्ति की स्थापना को लेकर, किंतु कुछ दुष्कृतियों ने रात के अंधेरे में बैनर को फाड़ दिया है। आज सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने देखा और हम लोगों को सूचना दी। हम लोगों ने वहां जाकर देखा तो पूरा बैनर ही फाड़ दिया गया है। इस घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल देखा गया। वहीं आदिवासी गावंता की ओर से सुनील किस्को, कार्तिक सूरज, अमित मिश्रा आदि कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोगों ने सिद्धू कान्हू मूर्ति बनाने को लेकर एक बैनर लगाया था। आज सुबह देखा कि कुछ दुष्कृतियों ने इस बैनर को फाड़ दिया है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और वहां से एक जुलूस निकाली गई, जो इलाके में परिक्रमा करते हुए दुर्गापुर थाना पहुंची और दुर्गापुर थाना प्रभारी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इसकी जांच करने के लिए और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मांग की गई। মূর্তি স্থাপন করার জন্য ওখানে বেদি করার কাজ চলছে। এবার ওখানে কি হয়েছে, আমাদের ব্যানার টাঙানো ছিল, মানে ব্যানারটা আমাদের ছেড়ে ফেলে দিয়ে কোথায় অন্যদিকে ফেলে দিয়েছে। তো ওইটা নিয়ে আমাদের আজকে প্রতিবাদ মিছিল, এটা নিয়ে থানাতে ডিপুটেশন দিতে আমরা এসেছিলাম। আমাদের প্রতিনিধি ভিতরে গেছেন, এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ওনারা বেরোলে তারপরে ব্যানার আমাদের লাগানো হয়েছে, বেদি করার কাজ হচ্ছে। কারা ভেঙেছে? কোনো দুষ্কৃতীরা ভেঙেছে। কোন জায়গায়? কোন জায়গায়? কমলপুর সার্ফের এলএস হ্যালো স্টিল লিমিটেড সার্ফ। তাই তোমরা এখানে ডেপুটেশন দিয়েছো? কি নাম তোমার? दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर इलाके में पुलिस की कड़ी नजरदारी चल रही है। जगह जगह नाका चेकिंग की जा रही है। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने शिव पासवान नामक एक व्यक्ति को 9mm देसी पिस्तौल, कार्बाइन मशीन, एक बंदूक के साथ गिरफ्तार किया और उसे पुलिस रिमांड में लेने की बात रखी। কারবাইন যেটা আছে ওটা জেনুইন কারবার আছে, কোথায় থেকে লুট করেছে না কী করেছে আমরা বিভিন্ন থানাগুলোকে, আশেপাশে থানা আছে, স্টেটস আছে, ওদেরকে নাম্বার দিয়ে, বাট নাম্বার দিয়ে বা রাইফেল নাম্বার, ম্যাগজিন নাম্বার দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে কি এই আর্মসের সাথে বা এই আর্মস কোনো জায়গায় ব্যবহার হয়েছিল, এটা আমরা বলবো। কিন্তু এইটা যেটা দেখা যাচ্ছে যেখান থেকে পাওয়া গেছে, বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন থেকে এটা কোথাও মাটিতে মানে এটাকে ইয়ে করে রাখা হয়েছিল। তো ইট ওয়াজ বেসিক্যালি আমরা যেটা বুঝছি কি মানে এটা বিক্রি করার জন্য এটা করেছে। ব্যবহার হয়েছে কি না সেটা আমরা দেখতে পাবো পুরনো কেসে। এটা প্রহিবিটেড আর্মস আছে, 9mm কার্বাইন যেটা আছে, অরিজিনাল কার্বাইন যেটা প্রহিবিটেড আর্মস। তো এটাই আমরা বলছি আমরা কোথায় থেকে এটা নিয়েছে, মানে কোথা থেকে, সেটাই সেটা আমরা নাম্বারটা নোট করেছি। ম্যাগজিনের নাম্বার দেখা যাচ্ছে, বার্থডে নাম্বার দেখা যাচ্ছে, যে তো ওটা দিয়ে আমরা জেনে নেবো কোথায় থেকে তৈরি হয়েছে, কোথায় এটা পাঠানো হয়েছিল। আর কোনো জায়গায় আগে তো এটা মাওবাদী এলাকা ছিল, তো কোথাও মানে যদি এটা মানে চুরি করা হয়েছিল, চুরি করে মানে কোনো জায়গা থেকে ঘুরে ফিরে এখানে চলে এসছে এর কাছে, এরা কার কাছ থেকে কিনেছে
একটা নুর আলম তো এখন নেই, মানে জীবিত আছে নুর আলম? মারা গেছে। তো মারা গেছেন ওনার ইয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু যে সুনীল পাসওয়ান আছে শোলে, যে এখনও কাস্টাডিতে আছে, ওর মেন ওর কাছে ওরই সাপ্লাই করছে। ও কোথায় থেকে নিয়েছে, দ্যাট ইজ এ ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন। দেখুন, এই আর্মসটা ওরা কাউকে ভয় দেখানোর জন্য, রংদারি করার জন্য, টাকা নেবার জন্য, বা কোনো উল্টা কারোবার করার জন্য আর্মস তো এভাবে ব্যবহার হয়। প্লাস এখন দেখা যাচ্ছে যেহেতু এখন খুব শক্তি আছে, পুলিশ খুব সক্রিয় আছে, নাকা চেকিং হয় বা বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা খবর পাই, হ্যাঁ, ভিডিও খবর লাগায়। তো এই জন্য এরা কী করছে, এখন যেটা আমাদের ধারণা আছে বা যেটা ওদের বলছে কি বিক্রি করার চেষ্টা করছে, বিক্রি করছে বিভিন্ন জায়গায়। যখন বিক্রি করবে তখন আর্মস ব্যবহার হবে, আর্মস ব্যবহার হলে তখন এখানে এলাকায় মানে আতঙ্ক তৈরি হবে। এটা দেখতে হবে, মুঙ্গের আলা এটা বলতে পারবো না কোন জায়গায় তৈরি আছে, কিন্তু এখন অব্দি এটাই পাওয়া গেছে কি আর্মস আরও হতে পারে ওর কাছে। আমরা এই জন্য পুলিশ রিমান্ড প্রেয়ার করেছি, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখছি আর কত আর্মস ওদের কাছে হতে পারে। এরা কিছু লিড দিয়েছে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ আছে কি আরও আর্মস এদের কাছে আছে। শিবুর যে রোল আছে, শিবু একটা ক্যারিয়ার হিসাবে কাজ করতো। শোলে মেইন অ্যাকিউজ আছে, এই জন্য এই এফআইআরে শোলেও বাই নেম অ্যাকিউজ করা হয়েছে। না, প্রিভিয়াস কোনো কমপ্লেন নেই ওর নামে, যেটুকু আমার রেকর্ড আছে। বলছি স্যার, এর আগে একদিন ফয়দাসোর থানায় এর আগে দেখা গেছিল অনেকগুলো মার্ডার হয়েছিল কয়লাকে কেন্দ্র করে। ওখানে सिनेमा दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पिछले 10 दिनों से अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला कर कब्जा कर लिया है, वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि रानीगंज की हील बस्ती में पिछले 40 से 50 वर्षों से 4 अफगानी रह रहे हैं और उन्हें अपने परिवार की चिंता सताई जा रही है और वो भारत सरकार से गुहार लगा रही है कि वे उनके परिवार को बचा ले। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद स्थिति बद से बदतर होती ही जा रही है। अफगानी अपना घर बार छोड़कर दूसरे देश जाने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने घर परिवार को छोड़कर दूर देशों में बसे अफगानियों को अपने परिवार की चिंता सता रही है। दरअसल पिछले 10 दिनों से अफगानिस्तान की हालत को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ऐसे में घर से दूर रहने वाले लोगों का संपर्क अपने परिवार से नहीं हो पा रहा है और इसीलिए चिंताएं और भी बढ़ती ही जा रही है। रानीगंज की हील बस्ती में पिछले 40 से 50 सालों से रह रहे 4 व्यक्तियों को अपने परिवार की चिंता खाई जा रही है। यह चारों अफगानी काम की तलाश में इतनी दूर भारत आए थे। हालांकि बीच बीच में यह लोग अफगान जाया करते थे और अपने परिवार से मिलते थे। ऊपर से इंटरनेट की सुविधा ने दूर रहने वाले लोगों को और भी पास कर दिया है। लेकिन जब इंटरनेट सेवा बंद है तो फिर लोगों का हाल चाल जाने का भी रास्ता बंद हो चुका है। अब ना तो ये लोग अपने देश लौट सकते हैं और फिलहाल बात भी अपने परिवार से नहीं कर सकते हैं। लोगों के जहन में तालिबानियों का इस कदर खौफ है कि इसे बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। रानीगंज में रह रहे अफगानियों को यह तक नहीं पता कि उनका परिवार आखिर अब इस दुनिया में है भी या नहीं। यह लोग मीडिया के जरिए भारत सरकार से गुहार लगाए हैं कि भारत सरकार इस मामले पर हस्तक्षेप करे और वहां रह रहे अफगानों की जान बचाए। अफगानियों ने अपने खुद को याद करते हुए इबादत की तालिबानियों के दहशतगर्दी से उनकी रक्षा करे। क्या मालूम है कैसा है, हम लोग को मालूम नहीं है किस हालत में है। अब बंद है, टेलीफोन बंद है, कनेक्शन बंद है, हम लोग को कोई मालूम नहीं है कोई कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जिंदा है मरा है कैसा है। कौन कौन है फैमिली में आप लोग वहाँ? तो वही 6 लोग है, 6 लोग के भाई लोग हैं, वो सब है, रिश्तेदार हैं। वहाँ से अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कोशिश की कॉन्टेक्ट? बहुत कोशिश की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सब लाइन इकट्ठा हुआ, सब खाना बंद है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, हम लोग इधर अपना परेशान है, कितने दिन से हम लोग खाना नहीं खा रहे, कितने दिन से हम लोग नींद नहीं होता, नींद आराम होता है, हम लोग को खुद तकलीफ नहीं है। क्या सरकार सेंट्रल सरकार से गवर्नमेंट तो वही है कि हम लोग तो कोई भी माजर आएगा, कोई भी हम लोग का 20 का आदमी आएगा तो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा और उसको मदद करेगा। क्या नाम? हमारा नाम कादिर खान है, सब हमारा नाम गफूर खान है और कागज़ में हमारा कादिर खान नाम है। कितने सालों से आप लोग यहाँ हैं? हम बहुत साल से हैं। लास्ट मुलाकात फैमिली से कब? हाँ, नहीं होता, हम फैमिली सब यहीं पर है। क्या परिस्थिति है अफगानिस्तान में अभी? तो 6 दिन से एकदम खराब था, तो सब बिगड़ा हुआ। हम लोग का तो कोई
बात नहीं हो रहा, सब कुछ कटा हुआ, नेट कटा हुआ, मोबाइल का नंबर बंद है, वहाँ स्कूल बंद है, तो हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ तो किस हालात में होगा अल्लाह पाक जानता, हमको कुछ पता नहीं है। तो हम लोग इंडिया बोर्डिंग से कुछ करा दो, अगर कोई रास्ता खुल जाएगा तो यहाँ हम लोग को माजर हासिल से रहने देगा। आप लोग कितना दिन से इंडिया में हैं? हम तो एकदम बहुत दिन से, हम तो एकदम और 50 साल में रहुआ। आप लोग आना जाना करते हैं क्या? कैसा अभी आप लोग का गुजर रहा है? अभी तो जो परिस्थिति है ना, जो टेंशन में है, सब कोई इतना काबल का आदमी है, सब टेंशन में है। लेकिन जब नींद को गोली लाया, कल नींद को कंप्लीट कर रहा, इतना टेंशन में है। कितना आदमी आप लोग यहाँ पर रहते हैं? हम लोग 4 आदमी रहता है। और रानीगंज में और कितना होगा? और कुछ नहीं, 4 आदमी रहता है। क्या नाम हुआ आपका? आमिर खान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार बांकुड़ा जिला परिषद ऑडिटोरियम हॉल में बांकुड़ा और विष्णुपुर के नवनिर्वाचित तृणमूल पार्टी के अध्यक्ष, अन्य पदों के अधिकारियों और नए सदस्यों को लेकर तृणमूल भवन तक शोभा यात्रा निकाली गई। शुक्रवार बांकुड़ा जिला परिषद ऑडिटोरियम हॉल में बांकुड़ा और विष्णुपुर के नवनिर्वाचित तृणमूल पार्टी के अध्यक्ष, अन्य पदों के अधिकारी और नए सदस्यों को लेकर तृणमूल भवन तक शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बांकुड़ा जिला के विभिन्न इलाकों से निकाली गई, जिसमें महिला कर्मियों के अलावा तालडांगा विधायक अरूप चक्रवर्ती, रायपुर विधायक मृत्युंजय मुर्मू, जिला परिषद के पीडब्ल्यूडी विभाग के शिवाजी बनर्जी सहित कई नेता उपस्थित थे। बांकुड़ा जिला तृणमूल भवन में जुलूस समाप्त होने के बाद दोनों संगठनों के अध्यक्ष सहित विष्णुपुर, बांकुड़ा पौर निगम और कई सदस्यों को सम्मानित किया गया। तालडांगा विधायक अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि बांकुड़ा जिला में इस बार दायित्व बुक स्टोर्स कर्मियों तक को दिया गया है। आने वाले दिनों में पार्टी और भी ज्यादा प्रभावशाली होगी। पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। इसकी वजह से पार्टी को दिक्कतें भी आ चुकी है। ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। দেখুন, আমার ব্লক সভাপতিরা আছে, আমার এই বাঁকুড়া সাব ডিভিশন, এই বাঁকুড়া সাংগঠনিক যে জেলা, সেই জেলাতে আমার 14টা ব্লক, ঠিক 14টা না, একটু কম আছে, 14টা ব্লক এবং একটা পৌরসভা আছে। এগুলোতে আমার দলের সভাপতিরা আছেন। আগামী দিনে সেই জায়গাতে যা সংগঠন হবে, মানে যেভাবে সংগঠনের অগ্রগতি ঘটবে, সেটা কিন্তু আমার ব্লক সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করি। দেখুন, আমাদের যে ত্রুটিটা আছে সেটা কিন্তু বুথ স্তরে ত্রুটি আছে, ব্লক স্তরে নয়, অঞ্চল স্তরে নয়। আমাদের যে ত্রুটি আছে সেটা ব্লক বুথ স্তরে আছে। আমাদেরকে বুথ স্তরে নেমে কাজ করতে হবে, বুথের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। আমরা আগামী দিনে বুথের সংগঠনকে এখানে বাঁকুড়া জেলার আমাদের সিনিয়র লিডাররা রয়েছেন, অরূপ চক্রবর্তী, আমাদের মন্ত্রী রয়েছেন, আছে, আমাদের শ্যামল আছে, অলকাতি আছে, আরও নেতৃত্বরা রয়েছেন, আমাদের জয় আছে, সবাই রয়েছেন। তাদের পরামর্শে দিদির নির্দেশ একটা থাকবে, এটা কলকাতা থেকে তারা ডিসিশন নেবে, সেই ডিসিশনটা আমাদের নেতৃত্বে জানাবে। আমরা সকলে মিলে কাজ করবো। আমাদের মেন শক্তি হচ্ছে রাজনৈতিক বিজেপি, তাকে আমরা যে কোনো দিক দিয়ে কাজের মাধ্যমে। দেখুন, এই 12টা সিটের 8টা সিট চলে গেছে। দিদি আমাদের বিধানসভাতেই বলেছেন যে এত উন্নয়ন দুর্গরা হেরে গেলে, কারণ কিছু কিছু নেতা আছে বাঁকুড়া জেলায়, এটা আমার ব্যক্তিগত মত, তারা রাজনীতি করেছে, আবার কেউ কেউ নেতা ব্যবসাও করে নিয়েছে এবং বালিঘাট, কয়লাঘাট প্রকাশ্যে দেবার লোকে যুক্ত হয়ে গেছে। 10টার মধ্যে 1-2 নেতা, সেই কালিটা আমাদের লেগে গেছে। নচেত কিন্তু মমতাদের কোনো দোষ নেই, দলের কোনো দোষ নেই, দু একটা মানুষ, সেই পাপটা আমাদের দলে লেগে গেছে। সেই পাপটাকে আমরা আস্তে আস্তে বিচার করে কাটিয়ে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং এতদিন ধরে দলটা করেছি, বিরোধী দলে থাকার সময় ঘুরিয়েও পেয়েছি, কিন্তু আজকে আমি পরিপূরক যে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব একদম লেভেল পর্যন্ত যে সম্মানটা দিত, যে একটা ব্লকের নেতা, একটা অঞ্চলের নেতা, সে আজকে বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। শহরের লোককে রাখলো না, আমরা যারা দলের দায়িত্ব ছিলাম আমাদের কাউকে রাখলো না। দল এমন একজন ব্যক্তি করে দিত, যার
যারা সংগঠনের মর্মটা বুঝবে, যারা মাটি চেনে, যারা বুঝছে। আমাদের দীপেন্দ্র বলছিল মিটিংয়ে যে আমি বুথ সভাপতি ছিলাম, আজকে বুথ সভাপতি, জেলা সভাপতি। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের একটা সেলাম নেওয়ার জায়গা। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্যবাদ জানানোর কথা। এক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন দলটা এমনভাবে চলবে যে মানুষের গ্রহণযোগ্যতা দলের প্রতি আসবে। আমাদের কিছু লোক বদমাশি করে, ঘরের টাকা নেয়, লুটপাট করে, দলের বদনাম হয়। এই কয়েকটা লোকের জন্য দিল্লির গায়ে কালিদার ক্যামেরা চলে পরিষ্কার। পঞ্চায়েতে যে কাজ চলছে, 100 দিনের কাজ চলছে, ঘরে যেসব বিতরণ হচ্ছে, কোনো ঘর মালিকের কাছে কেউ টাকা নিবে, তাকে হাজতে পাঠিয়ে দেবে, হাতটা ভেঙে দিতে হবে। তৃণমূলের নামে বদনাম করতে দেওয়া যাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছি আমরা যারা তৃণমূলের নেতৃত্ব, এমএলএ, নেতা, সভাপতি, যখন রাস্তায় হাঁটবেন শান্তি থেকে बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का 77वां जन्म दिवस बराकर और नियामतपुर कुल्टी कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का 77वां जन्म दिवस बराकर और नियामतपुर कुल्टी कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सीतारामपुर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूलों का माला देकर उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंडी चटर्जी ने कहा कि भारत के एकमात्र युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उनके प्रयास से कंप्यूटर मोबाइल से दुनिया हर खबर सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए। इस अवसर पर कुल्टी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुकांतो दास, लव बैनर्जी, तपन बैनर्जी, राजीव सिन्हा सहित अन्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं बराकर स्टेशन स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा के निकट राजीव गांधी की तस्वीर पर स्थानीय कांग्रेस नेता केदार प्रसाद मोहन गुप्ता ने फूल माला दिया। वहीं दूसरी ओर बेगुनिया बस यूनियन कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंटक नेता हराधन मंडल, बाबू बैनर्जी, गौरा चैटर्जी सहित बस कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। पार्टी ऑफिस में क्या क्या प्रोग्राम हुआ? आज हम लोगों का पार्टी ऑफिस में नहीं, हमारे पूरा भारतवर्षे आज पार्टी ऑफिस बोले कथा। आज हमारे भारतेर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी आज के 77तम जन्म दिवस। राजीव गांधी जी 77तम जन्म दिवसे आज আমরা কুলটি ব্লকের জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয় নিয়ামতপুরে অবস্থিত সেই পার্টি অফিসে আজ আমরা কংগ্রেস কর্মীদের এবং নেতৃত্ববৃন্দদের সাথে আজ আমরা এখানে ওনার জন্মবার্ষিকী পালন করলাম। ওনাকে ফুল দিয়ে, পুষ্পমালা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালাম এবং সকলকে আমরা মিষ্টি বিতরণ করে ওনার জন্মবার্ষিকী আজ আমরা পালন করলাম। রাজীব গান্ধীজি আমাদের দেশকে এক নতুন দিশা দিয়েছিলেন, ভারতকে শক্তিশালী করার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তিনি অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি তার পুরো স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি আর ওনাকে খুব জলদি আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু উনি আমাদের জন্য আইটি রেগুলেশন বলতে পারেন, টেকনোলজিতে যে রেগুলেশন যে করেছিল সেইটা হতে পারে, ঠিক আছে। আজ আমাদের পঞ্চায়েত রাজ যেটা বলতে পারেন সেটা উনি নিয়ে এসেছেন এবং আমাদের যে SC ST এবং ওমেন্স যে রিজার্ভটা আজকে ওনারই দেন। তাই বলতে পারেন যে এক তরফ থেকে ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করার পেছনে কিন্তু আমাদের রাজীবজি ছিল। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए
ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358. District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा कालागुड़ी मंदिर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर और उच्च माध्यमिक में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा कालागुड़ी मंदिर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर काजोड़ा यंग स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से रक्तदान शिविर और इस वर्ष उच्च माध्यमिक में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी दी गई। इस रक्तदान शिविर में करीब 35 लोगों ने अपना रक्तदान किया। इस अवसर पर अंडाल BDO सुदीप्तो विश्वास और उपस्थित सभी नेताओं ने बच्चों को पेन और सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान BDO सुदीप्तो विश्वास ने कहा कि आज राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं इन सभी रक्तदान करने आए लोगों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि अंडाल ब्लॉक के लोगों में एकता है, हमेशा लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अंडाल में बहुत से संस्थाएं हैं जो अच्छी काम करती है। इस दौरान जिला परिषद कोमेंट और कंचन मित्रा, युवा तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कौशिक मंडल, काजोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान पान केष्टो नोनिया, मलय चक्रवर्ती, प्रदीप भंडारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। এবং অবশ্যই যারা আজকের এই রক্তদান করছেন প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমরা জানি যে রক্তদান জীবনদান। আমরা জানি না রক্ত দিয়ে কতজনকে জীবন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যায় কিনা, কিন্তু অনেক মানুষকে
রক্ত দিয়ে যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায় এটা আমরা সবাই জানি। আজকে অন্ডাল ব্লকে বিডিও সাহেব বললেন প্রায় 50-60টা রক্তদান শিবির হয়ে গেছে। আজকেও এই রক্তদান শিবির কাজড়ায় যেটা হচ্ছে সেটা মানুষের কল্যাণের জন্য সাধিত হচ্ছে। আজকে সারা বিশ্বব্যাপী যখন একটা অহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তখন কাজড়াঙ্গরের ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব তাদের যে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করে আজকের এই রক্তদান শিবির করেছেন, তার জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি আশা করব আগামী দিনে আরও এরকম আজকে রাজীব গান্ধীর জন্মদিন ৭৭তম। সেই জন্মদিনটি আমরা আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রায় 93 সাল থেকে আমরা জন্মদিনটি পালন করে আসছি। বিগত বৎসরগুলির মতো এই বছর আমরা রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ গরিবদের মধ্যে এবং আমাদের যে কারোরা হাই স্কুল রয়েছে সেই হাই স্কুলের যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সামান্য কিছু পুরস্কার দিয়ে তাদের সম্বর্ধনা জানাবো। অন্যান্য বছর আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকি, কিন্তু কারণ কোভিডের জন্য এবারে সেটা বন্ধ করে রেখেছি। রক্তদান এখনও অবধি 12 জনের মতন করেছে। 30 জন থেকে 35 জন রক্তদাতার রক্তদান করবে। প্রায় 200 জনের কে আমরা বস্ত্র বিতরণ করবে। মলয় চক্রবর্তী। आज जो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो यंग स्पोर्टिंग क्लब जो आज रक्तदान शिविर और वस्त्र वितरण तथा जो हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो छात्राएं जो उत्तीर्ण हुए हैं 1st, 2nd, 3rd, उनको उत्साहवर्धक करने के लिए उनको प्राइज दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे इसके पहले भी हमारे जो क्लब है यंग स्पोर्टिंग क्लब, हमारे कोविड का टाइम भी गरीब मनुष्य को जब कोरोना काल में सभी का काम बंद हो गया था तो उस टाइम हमारे क्लब के माध्यम से घर घर जाके चावल वितरण, आगे भी मतलब ब्लड डोनेशन कैंप, साथ ही साथ आपका जो भी कोविड पेशेंट हैं उसको हॉस्पिटल जाके भर्ती करवाना, अगर कोविड पेशेंट है उसको होमलेस करना, साथ ही साथ उसको खाना का व्यवस्था करना, ये सब जो सामाजिक कार्यक्रम जो हमारा यंग स्पोर्टिंग क्लब जो कर रहा है वो करते आ रहे हैं। हम इस क्लब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और हम पंचायत की तरफ से हमारा जो भी सहायता होगा इस क्लब को हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पान कृष्ण नोनिया, कजरा ग्राम पंचायत प्रधान। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का आज 77वां जयंती है। जन्म दिवस पर कांग्रेस की ओर से दुर्गापुर शहर के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का आज 77तम जयंती है। जन्मदिन पर कांग्रेस की ओर से दुर्गापुर शहर के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित की गई थी। प्रदेश कांग्रेस तरुण राय के नेतृत्व में गोपाल मठ अंचल में राजीव गांधी की मूर्ति के समस्त कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां राजीव गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वहां से चलकर इस्पात नगरी के काशीराम में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्मृति भवन के समक्ष सेवा दल की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उपस्थित रहे महकमा सेवा दल के चेयरमैन अमल हलदार, इंटक नेता विकास घटक, प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय, पुरनेंदु पांडा, राणा सरकार सहित कांग्रेस कार्यकर्ता। इस दौरान गरीब परिवार के लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई तथा मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए। इसके अलावा वुमेन्स कॉलेज के रोटरी के समक्ष राजीव गांधी की मूर्ति पर जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तरुण राय ने कहा कि यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। यह बहुत ही सरल स्वभाव के धैर्यवान व्यक्ति थे। अहम निर्णय सदैव पार्टी के लोगों से परामर्श कर ही लिया करते थे। यह बहुत सहनशील युवा के प्रतिबिंब थे। यह भारत के लिए एक नवीन अनुभव की छवि रखते थे। इन्होंने देश को आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके हित में कई निर्णय एवं बदलाव किए। सरलता में राजनीति को चलाने में इनका कोई तोड़ नहीं था। मरणोपरांत 1991 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। सुरेश प्रसाद के शुरू করে প্রভৃতি বক্তারা রাজীবজি সম্বন্ধে বলেছেন। আজকে ভারতবর্ষে যা দেখছেন
সবই কংগ্রেস, রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী। কংগ্রেসকে বড় করে প্রচার করতে হয় না, যেদিকে তাকাবে আজকে কংগ্রেসের দান। আজকে বাড়িতে বসে সারা বিশ্বকে দেখতে পাচ্ছেন রাজীব গান্ধীর দান। কেউ কোনো রাজনৈতিক দল তারা বড় করে বলতে পারবেন না বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের মাধ্যমে। আজকে ঘরে বসে মোবাইল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু আজকে রাজীব। যেখানেই দেখবেন বিশ্বে ভারতবর্ষকে যে পৌঁছে দিয়েছে ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে, রাজীব গান্ধী দেখিয়েছেন। 18 বছরের যুবকদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন, ভোটারের অগ্রাধিকার। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নির্বাচন করার ক্ষমতা দিয়েছে। তাই আজকে আপনাদের বলবো, যে যেখানে আছে রাজীব গান্ধীর জন্মদিনে আজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। ভারতবর্ষে কংগ্রেসকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে, বাংলায় কংগ্রেসকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কংগ্রেস না ফিরে এলে ভারতবর্ষ, ঐক্যের ভারতবর্ষকে রাখা যাবে না, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে রাখা যাবে না। তাই রাজীবজির জন্মদিনে আজকে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে কংগ্রেসকে শক্তিশালী হবে, সেই কাজ আমরা করব। জয় হিন্দ। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 स्थित राजाबंद तृणमूल माइनॉरिटी सेल पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि तृणमूल माइनॉरिटी सेल के साथ जुड़े कई लोगों को शुक्रवार दायित्व भार दिया गया। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड स्थित राजाबंद टीएमसी माइनॉरिटी सेल पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि टीएमसी माइनॉरिटी सेल के साथ जुड़े कई लोगों को शुक्रवार दायित्व भार दिया गया है। टीएमसी माइनॉरिटी सेल के साथ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि इस सिख ईसाई धर्म के लोग भी जुड़े हैं। टीएमसी माइनॉरिटी सेल के साथ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख ईसाई धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं। इन लोगों को पद भर देकर संगठन को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान ने कुछ बदलाव कर 5 नए सदस्यों को जगह दी। आफ्ताब जाहिदी और जावेद आलम दोनों को महासचिव बनाया गया। एसएम इमरान अहमद को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। तिलक चंद्र सिंह को उपाध्यक्ष और गुलाटी सिंह को वार्ड अध्यक्ष का पद दिया गया है। इस दौरान इंतखाब खान ने कहा कि मुझे उम्मीद है नए सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यक सेल के लिए बेहतर काम किए जाएंगे। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का एक कमेटी अपना ही है, पर हम लोगों के साथ कुछ लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और उनको हम लोगों के साथ काम करने के बाद उन लोगों को हम लोगों ने जगह नहीं दे पाए थे, इसीलिए आज हम लोग उन लोगों के लिए एक जगह निकाले। जिस तरह से सिख धर्म के लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उनमें से आज हम लोगों ने एक सिख धर्म के राजा सिंह और तिलोचंद सिंह को हम लोगों ने जिला के पश्चिम बर्धमान रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के तरफ से उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इसमें सिख धर्म के एक 93 वार्ड के प्रेसिडेंट बनाया गया जिन्हें गोल्डी सिंह है, वार्ड नंबर 93 का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और क्रिश्चियन में हम लोगों के साथ अजय सिंह भी मौजूद है और इसके साथ साथ सेक्रेटरी भी बनाया गया है, जिसमें सेक्रेटरी हम लोगों के पहले से मौजूद थे आफ्ताब जहीदी, सरवर आलम और एक नया सेक्रेटरी जावेद आलम को बनाया गया है। और इसके साथ साथ सिर्फ सेक्रेटरी बनाया गया है एसएम इमरान को और सुफियान खान को और एक अरशद महबूब को। इसी तरह हम लोगों के साथ 6 लोग नए जुड़े हैं इस कमेटी में, इस कमेटी को मजबूत करने के लिए। और इस कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा सभी जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं, इसके साथ साथ अन्य जितने भी लोग हैं, सबों का मदद कर पाएँ और माइनॉरिटी सेल को मजबूत किया जाए। इसी से आज हम लोगों ने कुछ लोगों को अपने के साथ जोड़ा है। और इसके साथ साथ यही कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी सेल पूरे पश्चिम बर्धमान में एक बहुत ही अहम रोल और एक बहुत ही अच्छा रोल इलेक्शन के वक्त निभा चुका है। इसका रिजल्ट आज आप लोगों के आंखों के सामने है और आगे भी ये माइनॉरिटी सेल अपना ही इसी तरह से काम करता रहेगा और हम लोग लोगों के साथ हैं और सभी के साथ रहेंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।